fourth one is fund closure. So I will not start with what is investment and all boring such stuff. Like आज से 4 साल पहले 8 लीटर दूध 25 रुपीज में था, राइट सर? Correct बोले 25 rupees. And after 4 years, right now the present value of milk is rupees 50. Okay, so what happened? Why the price of product is increasing? That is due to inflation. इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? जब चीजों की प्राइजेस बढ़ते जाते हैं और हमारी मनी की वैल्यू, मनी की जो परचेजिंग पावर होती है वो कम होती जाती है। जैसे आप पहले आज से 4 साल पहले 100 रुपए में 4 लीटर दूध ला सकते थे, आज से 4 साल पहले। आज 100 रुपए में सिर्फ 2 ही लीटर दूध आ रहा है। वाई? दूध में कुछ एक्स्ट्रा आने लगे? नहीं, वही दूध आ रहा है। आपके पैसे की कीमत गिरती जा रही है। तो अब हम क्या करें? सपोज 2019 में आपके पास 100 रुपए थे, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए ने वो 100 रुपए अपनी जेब में रखे और पर्सन बी ने वो 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए। 1 साल बाद पर्सन ए के पास क्या है? उसकी जेब में अभी भी 100 ही रुपए, बट पर्सन बी के पास 106 रुपीज है। क्यों? क्योंकि बैंक से उसे 6% इंटरेस्ट मिला। दैट माइट बी ऑन सेविंग अकाउंट, दैट कैन बी फिक्स्ड डिपॉजिट, दैट कैन बी एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट। सो अच्छी चीज है, आप इन्वेस्टमेंट बैंक में कर सकते हो। बट क्या ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है? क्या आपको आपके पैसे की कीमत मिल गई? क्योंकि जैसे इन 4 सालों में 1 लीटर दूध की कीमत में 25 रुपए का अंतर आया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? पैसे की कीमत बढ़ती जा रही है और आपकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो रही है। दिस इज नोन एज इन्फ्लेशन। हर साल अराउंड 5% का इन्फ्लेशन होता है। ओके, 5% इन्फ्लेशन मतलब जो आज आप 100 रुपए में ले पा रहे हो, अगले साल आपको 105 में लेने होगा। बट आपके पास तो 106 रुपए आ रहे अगले साल। इट मीन्स आप अभी भी 8 रुपए प्रॉफिट में हो। इफ यू आर इन्वेस्टिंग द अमाउंट इन द बैंक, देन यू आर गेटिंग 106 rupees and the purchasing power is 105. It means you are in a profit of 1 rupees. तो इसका मतलब आपको 100 रुपए में आपने पूरे साल में सिर्फ 8 रुपए कमाया। ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है? नहीं ना। ऑब्वियसली यू विल थिंक कि यू कैन मेक मोर मनी आउट ऑफ दिस 100 rupees. So how you can make it? For that you have to do an investment, right? You have to investment in different things, but first you must know what is investment. Investment is an asset or an item acquired with the goal of generating income or appreciation. In simple terms, like पैसे से पैसा बनाना, investment वो होता है। Okay. Yeah. And appreciation मतलब पैसा बनाना है। That is investing, sir. आप पैसे से पैसा बना रहे हो means आप investing कर रहे हो. Investment means you are putting your money somewhere and you are getting the income or appreciation. Appreciation आपके दिमाग में आ रहा है, what is appreciation? So as you are a retail investor, so I will say you like it means आपकी जो भी asset है उसमें उसकी वैल्यू में बढ़ोतरी आना टाइम से। आज आपके पास 100 रुपए, तो अगले साल वो 110 हो जाने चाहिए। दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। सो वो चीज कैसे हो सकती है? इन्वेस्टमेंट से। सो अब आप बोलोगे बहुत तरह की इन्वेस्टमेंट, राइट? जैसे हम इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड, सोना जो बोलते हैं, आज से इन 2017 लाइक 10 ग्राम सोने की कीमत 28-29,000 थी, and right now it is touching the sky 47-48,000. It's like around 80% growth. So you can invest in Okay. Then mutual funds are there. Fixed deposit means bank. But how you can invest? If you want to invest in equity, digital gold, mutual fund, there is only one thing. That is Upstart. Now you will think, what is Upstart? I think everyone has the Upstart account. That is Demat account. This is a platform where you can invest in different schemes and all. And what are the different benefits you can get? I will let you know. But before that, you must know, like there are certain important points you must know before becoming an investor. Return vs inflation rate. As I give you example of that bank, in that you are getting the return of 6%. Oh, you are like, oh, I have invested 100 rupees and I am getting 6 rupees profit. But are you keeping the inflation rate in your mind? That the inflation rate is 5% and your return is 6%. It means the real return is around 1%. You are just getting 1% return.
दैट इज और वो 1% भी वो इनकम टैक्स रिटर्न में डिडक्ट हो जाता है, आईटीआर में वो चला जाता है। यस वो तो मतलब सर इट विल अप टू द इनकम, लाइक ए सर्टेन इनकम जनरेट होती है उसके बाद। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ बस, लाइक कि ओके yes sir. Then the second point is like, okay, you are saying yeah, I am an investor, I am investing, but no, investing and speculation are two different things. Speculation means okay, आपने आज देखा कि आज मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, आपने भी पैसा लगा दिया, आपको रिटर्न मिल गया, तो आप एक इन्वेस्टर नहीं हो, आप एक स्पेकुलेटर हो। आपने मार्केट में एक शॉर्ट टर्म के लिए स्पेकुलेशन की एंड आपको प्रॉफिट अर्न हो गया, बट वो रोज रोज नहीं होता। देन यू हैव टू डू इन्वेस्टिंग, फॉर दैट आपको बेसिक फंडामेंटल्स नॉलेज होनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट लंबे टर्म से लिए होती है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान, दैट्स। एंड देन as I mentioned upstart, so what are the different things you can do? Digital gold, IPO and mutual fund. So first I will explain you what is digital gold. In this, like it is a physical thing, it is not a physical thing, it is like everything is virtual. You will not get any gold, or you are investing in a virtual gold. If today you are purchasing 10 gram at rupees 44,000, 45,000, in future after a year you are saying that you are, it maybe go up, the demand will be more, than there are further factors that may affect the prices of gold. You can go and invest in digital gold and directly through Upstart. Then the second thing is IPO. What is IPO? First, I will let you know before going further. IPO means initial public offering. If company wants to raise fund, they will come to public through a primary market to raise the fund. In this they will list their shares. कुछ कंपनी के शेयर्स होते हैं, कंपनी वो शेयर्स पब्लिक में लाएगी, कंपनी उन्हें परचेज करेगी। तो आईपीओ वो प्रोसेस होता है, जो स्टार्टिंग का जो प्रोसेस होता है, जिससे कंपनी और पब्लिक के बीच में जो एक चैनल बनता है, जिसमें प्रॉफिट है। सपोज करते हैं हम आज एक है कंपनी टीसीएस ले लेते हैं, टीसीएस बहुत रेपुटेटेड है, सपोज वो मार्केट में आई ही नहीं, ठीक है, चलो हम जोमेटो ले लेते हैं। जोमेटो की मार्केट वैल्यू अच्छी है, उसके रेवेन्यू अच्छे हैं, तो हमने ये सारे देखा, हमने देखा कि उसने 300 पे अपना लिस्ट किया है प्राइस। अब आपको लगता है कि अब आपने पहले दिन दूसरे दिन ऑब्जर्व किया एंड इसकी 100 टाइम्स मोर इसकी डिमांड जा रही है, इट मीन्स ये शेयर 300 से ऊपर ही खुलने वाला है। ओके, इट मीन्स आप तो परचेज 300 पे कर रहे हो, ओपन होता है 400 पे एंड आपके पास 500 शेयर्स है, तो 500 इंटू जो 100 रुपए एक शेयर पे आपको प्रॉफिट हुआ है, 500 इंटू 100 आपको प्रॉफिट हो रहा है। आप ये देख सकते हैं टोटल, सॉरी 50 शेयर्स है, 50 इंटू 100 आपको 5000 प्रॉफिट विद इन अ सेकेंड। आपने कुछ नहीं किया, आपने जस्ट आईपीओ में अपना पैसा लगा दिया। इसमें रिस्क है, रिस्क जीरो। इसमें जो आपका अपस्टॉक अकाउंट है उससे आपका जो बैंक अकाउंट है वो लिंक होता है। You just need to maintain a 15,000 as a minimum that amount if you are going for a one slot, तो वो आपके बैंक अकाउंट में ही रहते हैं, वो कटते नहीं है पैसे, वो वहां पे स्टक हो जाते हैं टिल द फर्दर प्रोसेस विल गो। अगर आपको वो आईपीओ मिल जाता है तो आपके बैंक अकाउंट से वो पैसे कट जाएंगे और आपको आईपीओ मिल जाएगा। इफ आपको आईपीओ नहीं लगा तो आपके पैसे आपके पास है, आपका लॉस कुछ नहीं है, लॉस जीरो है, प्रॉफिट 5000 का हो रहा है। म्यूचुअल फंड, व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा लगाते हैं एंड जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जहाँ पे आपने लगा रहे हो वो पूरा पैसा कलेक्ट करके वो अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। सपोज अलग अलग म्यूचुअल फंड की अलग अलग पॉलिसीज होती है, कोई स्टॉक में करता है, कोई बॉन्ड्स में करता है, कोई मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अलग अलग होती है, इसीलिए हर म्यूचुअल फंड के रिटर्न अलग अलग है। तब इनमें से आपको कौन से फिर आता है कि स्टॉक इक्विटी। हाँ, आपने जैसे आईपीओ लगाया आपके पास स्टॉक आ गया, बट अब आप इनिशियल फेज में जब आपने नया नया ज्वाइन किया, ओके आपका स्टॉक अकाउंट है, नाउ यू विल थिंक कि मैं कौन सी कंपनी के शेयर लूँ। ऐसे तो नहीं आप गए, आप स्टॉक खोला, आपने देखा है ये तो अंबानी की कंपनी, उठा लो, नहीं, उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज कहाँ से आएगी? उसके लिए दो चीज़ होती है, द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल एनालिसिस एंड द सेकंड वन इज टेक्निकल एनालिसिस। ओके, आपके नई टर्म्स होगी पॉसिबली। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं?
कंपनी के जो अलग अलग हेलो फंडामेंटल हाँ एनालिसिस, बोलो बोलो। फंडामेंटल एनालिसिस क्या हाँ होता है? हाँ जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के समझा जाता है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस को देख के हमें पता चल जाते हैं। इसमें बहुत सारे रेशियोज आते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज, देन इक्विटी टू डेट रेशियोज एंड मेनी मोर, जिससे आपको एक कंपनी की स्ट्रेंथ पता चल जाती है कि इस कंपनी की मार्केट वैल्यू ये है, इस कंपनी में दम है। तो सपोज आज ये कंपनी का शेयर 220 रुपए का है, आज मैं इस कंपनी का 100 शेयर लेता हूँ और मुझे पता है कि मैं 1 साल 2 साल में इस कंपनी का 220 से 500 टच करेगा। आपने इसके पूरे रिपोर्ट देखी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, तो अब आपने ये एनालिसिस किया, आपने 220 के शेयर को प्रेडिक्ट किया, 220 से आपने आपने देखा कि ये 500 जाएगा, इट मीन अराउंड आउट पर शेयर 280 का होता है, एंड आपने 100 शेयर खरीदे थे, तो आपको यहाँ पे अराउंड 28,000 के आसपास प्रॉफिट इजीली हो जाएगा। देन व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस जो पास्ट इसका जो भी ट्रेंड और वो सब चलता है उसके बेसिस पे होता है। बेसिकली जो भी पुराने प्राइस एक्शंस होते हैं, जो डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, डिफरेंट मोजी टेंडर्स होती है, टेक्निक्स होती है, उन्हें देख के समझा जाता है कि इस कंपनी की ट्रेंड लाइन और बॉलिंग बैंड्स क्या क्या है। पास्ट में इस टाइम पे ये कंपनी यहाँ थी, इसने ऐसे ट्रेंड किया था मार्केट में, अगर आज मार्केट इतना ऊपर जाता है तो इस कंपनी का शेयर कैसे रिएक्ट करेगा। ये सारी चीजें होती है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें अल्फा बीटा ये सब आते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है अगर आज मार्केट क्रैश होता है तो अगर कंपनी का बीटा +1 है तो वो भी क्रैश होगा, बट इफ उसका -1 है इट मीन्स इट विल रिएक्ट पॉजिटिवली। ओके फाइन, सो हम्म। आई विल गिव अ लाइव थोड़ा एग्जांपल। सा डीपली बताओगे अल्फा क्या है बीटा क्या है? ओके, बीटा मीन्स टेक्निकल एनालिसिस। यस सर, यस सर। तो बीटा बेसिकली होता है कि हाउ अ पर्टिकुलर स्टॉक विल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट। आज जैसे मैं आपको 2018 में मैं कोई भी XYZ का आपको मैं बताता हूँ कि जैसा टाटा स्टील है, उसका बीटा अराउंड 0.9 के आसपास है, इट मीन्स इट इज लेस देन 1। तो मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ठीक है। इफ मार्केट इज रिएक्टिंग पॉजिटिव इट विल बी नॉर्मल, and if market will go down it will be normal, but if the beta is more than 1, then if market will crash then that particular stock will also crash। तो वो एक मार्केट के साथ चलता है, बीटा से हमें ये पता चलता है। ओके ओके तो या मैं सो अभी आपको नेक्स्ट। हाँ मैं अभी आपको लाइक ओके नाउ आई विल डू अ रियल सिचुएशन लाइव एग्जांपल, लाइक हाउ टू इन्वेस्ट लॉजिकली। लाइक अभी हमें पता है कि थ्रू आउट द मतलब थ्रू आउट इन इंडिया देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ऑक्सीजन की कमी है तो कैसे पूरी होगी? ऑब्वियसली स्टील के थ्रू, बिकॉज अपने इंडिया में 90% ऑफ ऑक्सीजन स्टील की तरफ चला जाता है, 10% हॉस्पिटल्स में यूज होता था। बट अभी क्या हुआ, पूरा डाइवर्सिफाई हो रहा है, तो जितना भी स्टील सेक्टर है दे आर गोइंग अप, राइट, बिकॉज ड्यू टू rise in the demand for the steel. So are you able to see my screen, sir? That BSc website. ओके So like I will show you, like on you can see on 26th of April the price of Tata Steel is 934 rupees. Okay, sir. Then ओके within a 4 days span, April 26th, so I can show you within a 4 day 38th, it is touching 1040. Within 4 days, it goes up by 100 rupees. So if you are holding 100 share of Tata Steel, then within a 4 days you are earning 10,000 rupees. So ये कोई तुक्का और नहीं है कि आपको कैसे पता। This is just based on the news you are getting in the market, because अभी आपको पता है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, इट मींस व्हिच इंडस्ट्री इट विल अफेक्ट, व्हिच सेक्टर इट विल अफेक्ट, you must know. So that's why according to that you are going to invest. Right now I am holding 100 share of Tata Steel from around 80 rupees, because I did my analysis. ओके Okay.
So I think you got this. Then what else profit you can get? Like company on like in a year, like it's not like every company will do, but they will give dividend. What is dividend? Like if companies earning profit of 10 rupees, then they will keep 10 rupees as a reserve and surplus, then rest they can provide as a dividend to their shareholders. So like I am holding 100 share of Tata Steel. Like in a January, they have given 2.8 rupees of dividend on a per share. So I am getting 2.8 rupees on one share. सिर्फ स्क्रीनशॉट में शायद गलत पेज है, ओपन कर लो, वो परफेक्ट पेज नहीं है, वो एग्जांपल है वही पेज शो कर रहा है, तो डिविडेंड वाला पेज शो नहीं कर रहा है. Yes, just उसका मैंने सर मतलब पर्टिकुलर बनाया नहीं था, मैंने मतलब खुद ये यहाँ लिखा व्हाट एल्स यू कैन गेट फ्रॉम द प्रॉफिट. सो पर्टिकुलर ठीक मैं है, ठीक. हाँ. So dividend का then you can get the dividend as somebody provided me 2 rupees 2.8 rupees per share. So I am getting around 280 rupees. That is just a profit. I didn't do anything. I just got from the company side. So on this basis, you have to invest. If you are keeping your money with you, they are not giving you anything. But if you are investing, you can get much more. You must always have alternative income of source of income. Okay, you are doing job, you are earning 50, 30, 40,000, but you must have alternative source also from where you can earn your income. Thank you. Thank you, Sivdan, for nice presentation. Sivdan, I have questions. Yes, sir. Which one is better one, mutual fund or direct mutual fund SIP, or it's a share company shares SIP? Sir, I will go for equity, sir. Companies on Okay. company share, because the thing is now in mutual fund that we are depending on someone. They are like we are giving them money and they are investing. Okay. And they are giving at 10, 12, 14%. But they are keeping their profit aside. But the same thing we can do by ourselves by doing fundamental analysis. Just I did for the steel sector that this might be happen. So I did my analysis properly and I got the lead and then I get my profit. So